Morning everyone, good morning guys, very good morning. Welcome to this super awesome YouTube channel of India's largest online education platform, Unacademy. And guys, this is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, let's begin our lecture number 6 on the topic of admission of a partner. I hope everyone has done the homework. कल 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे. आई होप एवरीवन इज रेडी विद द आंसर. आर यू गाइज रेडी विद योर आंसर्स? प्लीज पोस्ट योर आंसर्स. So friends, we are continuing our partnership series, the timing of which is 11:30 a.m. to 12:30 p.m. on YouTube, and we are also commencing our RTP, MTP and PYP batch, one of the most awaited batch at Unacademy's platform by your loving Bahubali team, which is going to be starting from 17th October and will conclude by 26th of November, wherein we are taking 4 days session and 3 days of the week are for your self-study. My schedule in this particular batch is, I will be guiding you through RTP and MTP. I will be guiding you through RTP and MTP guys on Wednesday and Thursday from 3:30 to 5:30. Friends, today is the last day to avail the offer of 20% off. If you are buying your subscription today, you are getting 20% off on your subscription. You just have to apply my code, which is DKJ10. Now, another good news, we have also introduced 2-month subscription for 7,200. So, anyone who is going to appear in November exam, or I must say December exam, which is commencing from 14th of December, you can also buy 2-month subscription at just 7,200 for today. इसमें आप क्या क्या कवर कर सकते हो? You can cover RTP MTP batch. You can cover important topics from Mission Success batch. You can cover 900 MCQs batch of maths and economics. And very important guys, my midnight revision series for this attempt will also be on Unacademy Plus. Due to the restriction on special classes, we shall be conducting our midnight revision series on the Plus platform itself. So guys, even if you are buying 2 months ka subscription, it will be sufficient for you to clear your examination. बहुत सी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी दोस्तों. Do not forget my code, it's DKJ10. You can also go for Iconic subscription, जिसके prices आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं दोस्तों. Yes, you can also go for our test series product. For 3 months, you will be ending up paying just 1,200 rupees after applying my code DKJ10. But I always suggest my students to go for the combo subscription. The reason is very simple. Combo subscription gives you foundation के 4 और इंटर के 8, कुल मिलाकर 12 subjects at just around 40,000. That too for 2 years, 24 months. Yes, my code DKJ10. This is our awesome result. June 22 में जो बाहुबली टीम ने दिया है, expecting the same result and इससे अच्छा result for your attempt. Guys, 13 students in the last attempt, 13 students scored 90 plus marks in the subject of accounts, expecting the same from you. Do like, share and subscribe both these YouTube channels. These are the dedicated YouTube channels of Bahubali team for CA Foundation. Do subscribe to this particular Telegram channel, Unacademy CA Foundation. It is a dedicated Telegram channel by Bahubali team of Unacademy for CA Foundation students, जहां पर 27,000 स्टूडेंट्स से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं. 27,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है. आप किसका इंतजार कर रहे हो गाइस? Soon, yes. Do follow me on the Unacademy's learning app. My ID is CA_Darshan_Jain. Same is the ID on Telegram as well as Instagram. And guys, let's check the homework first and proceed ahead for the new questions for today. Okay, so guys, let me know what was the homework. कोई याद दिलाएगा? Question number 13 हम लोगों ने कर लिया था. Question number 14 हम लोगों ने कर लिया था. I think 15th one was given as homework, if I am not wrong. Question number 15th was given as homework. Yes, good morning everyone. Good morning guys. Divya, Mahek, Trupti, Khushi, Harsh, Manpreet, Tanisha, Swaroop, Ananya, Neil. Very good morning guys. Rishabh, good morning. Nitin, good morning. Samara, Taylor, Eknath, Samiksha, very good morning. Bhumi, good morning guys. चलो आ जाओ.
तो क्वेश्चन नंबर 15 सबसे पहले चेक करेंगे, आंसर पोस्ट कीजिएगा। तो गाइस रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो ही चीजें बनाने के लिए कही गई थी आपको, दो ही चीजें बताई गई थी। एक है रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज चेक योर आंसर्स एवरीवन, प्लीज चेक योर आंसर्स एवरीवन। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट ये रहा दोस्तों, ऊपर आंसर दे दिया है, ठीक है। ए बी सी का कैपिटल, टेलर, गुड, यस चेक कर लो दोस्तों। नो प्रॉफिट नो लॉस, यस नो प्रॉफिट नो लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल सही। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ए बी सी आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एंड गाइस ये रहे वर्किंग नोट्स। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 और फर्म का गुडविल, हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन था दोस्तों। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 19 भी होमवर्क था दोस्तों। कहां गया 19th? यस, लीना मीना एंड नीना। लीना मीना नीना का आंसर चेक करेंगे। पोस्ट योर आंसर्स प्लीज, पोस्ट योर आंसर्स एवरीवन। पोस्ट योर आंसर्स। Profit on revaluation is 20,000, correct. Swaroop. Profit on revaluation, Bhumi, correct. Yes, capital balance is लीना कैपिटल 79 है बेटा। नील कहाँ गलत कर दिया है, चेक करो कहाँ गलत कर दिया है नील। अरे ओ नील बेटा, यस हमारा, यू कैन, डोंट स्किप एग्जाम। 2 महीने अभी भी बहुत कुछ लेकर आए हम लोग, ठीक है। 2 महीने में बहुत अच्छा कवर करवाने वाले हम लोग, बाय द वे ऑफ रिवीजन सीरीज, मैराथन्स, आरटीपी एमटीपी बैच एंड डे बिफोर मैराथन। तो डोंट लूज होप्स हमारा, यू कैन स्टिल क्लियर योर एग्जामिनेशन। चेक एवरीवन। अश्मित करेक्ट बेटा, भूमि करेक्ट बेटा। सर प्लीज इंटरमीडिएट एमटीपी आरटीपी पीवाई के सॉल्यूशन पीडीएफ अपलोड कर दो। नहीं है बेटा उसके पीडीएफ, बेटा आयुष नहीं है बेटा। खुशी कहाँ गलत किया चेक की तो करो। खुशी आपका आंसर गलत है, कहाँ गलत हुआ चेक करो। बेटा ये फाउंडेशन का क्लास है आयुष। प्लीज चेक कहां गलती हुई है, रेक्टिफाई कर लो। चलो नेक्स्ट बैलेंस शीट चेक कर लेना एक बार, बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेना। हो जाएगा सुमन, 2 महीने अभी भी है, हो जाएगा, यू कैन स्टिल ट्राई। सर बैलेंस शीट में गुडविल दिया है, कहाँ है, वेयर इज गुडविल? स्वरूप
पढ़ाते वक्त ही बोला था कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां बैलेंस शीट में गुडविल होगा। कहां है गुडविल? यूज न्यू मॉड्यूल, नया मॉड्यूल यूज करो। चलो फैंटास्टिक, फैंटास्टिक गाइस, लेट्स मूव। आज कौन से क्वेश्चंस करें? कम टू क्वेश्चन नंबर 16 एवरीवन। 15 हो गया था, 16 करते हैं आज। आ जाओ। वो पुराने स्टडी मटेरियल में है, सही कह रही है खुशी। क्वेश्चन बेटा पुरानी मॉड्यूल रेफर नहीं करना है। देयर हैज बीन चेंजेस इन द क्वेश्चंस। रेफर ओनली मे 22 या उसके आगे का मॉड्यूल। स्वरूप, चलो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, आज 2 क्वेश्चन हमें निपटाने हैं, जल्दी आ जाओ। Dalal Banerjee and Malik are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31st March 2020 is as below. Trade payables, outstanding liabilities, general reserve, capital account, Dalal Banerjee Malik, land and building, furniture, inventory of goods, trade receivables, cash in hand, cash at bank. The partners have agreed to take Mr. Mistry as a partner with effect from 1st April 2020 on the following terms. Mistry shall bring 50,000 towards his capital. The value of inventory should be increased by 2,500 and furniture should be depreciated by 10%. Reserve for bad and doubtful debt should be provided at 10% of the trade receivables. The value of land and building should be enhanced by 20%. The value of goodwill is fixed at 15,000. General reserve will be transferred to partners capital account. The new PSR will be 5:5:3:2. The outstanding liabilities include 1,000 due to Mr. Sen, which has been paid by Mr. Dalal. Necessary entries were not made in the books of accounts. Prepare revaluation account, capital accounts of the partners, balance sheet of the firm after admission of Mr. Mistry. Yes. So, guys, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों भी बनाना है। वर्किंग नोट्स में बन जाएंगे दोस्तों। गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी अगर हम करते हैं और अगर आंसर निगेटिव में आता है, सपोज आई एम कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव इट मींस इट्स अ गेनिंग रेशियो। ठीक है। सो गाइस लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट। वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। Very good question. Revaluation account, 10 lines. Partners capital account with 4 columns now. Dalal, Banerjee, Malik, Mistry. 4 columns. Then prepare balance sheet for around 10 lines. And then calculation of sacrificing ratio of old partners. ठीक है ना? Give me thumbs up if you are ready. I'll start the question. Let me know if you are ready with the format. चलो लेट्स बिगिन। Now Dalal, Banerjee and Malik are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31st March 2020 is as below. ठीक है, अपने तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक एक आइटम पढ़ेंगे, कोई एडजस्टमेंट है देखेंगे, नहीं है तो वैसे ही रख देंगे उसको। सबसे पहले ट्रेड पेबल्स 12,850। एनी एडजस्टमेंट? एनी एडजस्टमेंट एवरीवन? चेक करके बताना कोई एडजस्टमेंट है क्या। एनी एडजस्टमेंट ऑन ट्रेड पेबल्स? Check and let me know if there is any adjustment on trade payables.
जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। कहां है जवाब? जवाब दे दीजिए। नहीं है। ऐसे की ऐसे ही बैलेंस शीट में लिख देंगे दोस्तों, लायबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स 12,850। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 1500। कोई एडजस्टमेंट है क्या? जी बिल्कुल। दी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इंक्लूड 1000 ड्यू टू मिस्टर सेन विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। ठीक है, तो दोस्तों ये 1500 रुपए जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है उसमें से 1000 रुपया दलाल ने पे कर दिया। हु इज दलाल? ही इज आवर पार्टनर। एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर दलाल अकाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू दलाल अकाउंट। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में से कम कर देंगे। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इनर कॉलम 1500 लेस 1000 पेड बाय दलाल, आउटर कॉलम 1500। फर्म की लाइबिलिटी थी, दलाल ने पे किया, तो अब दलाल को पैसे देने पड़ेंगे। लिख देंगे गाइस क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी दलाल 1000 रुपीज। प्रतीक्षा कौन है? अब वो तुम ही जानो। मैं तो लड़कियों से दूर रहता हूं तो मुझे तो पता नहीं प्रतीक्षा कौन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जनरल रिजर्व 6500। जनरल रिजर्व क्या कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देंगे 2:2:1। वेयर इज माई कैल्सी? हियर इज माई कैल्सी। चलो गाइस आ जाओ। 6500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 तो 2600 एंड 1300 2600 एंड 1300। जर्नल एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू दलाल्स कैपिटल अकाउंट 2600, बैनर्जीज कैपिटल अकाउंट 2600 एंड मलिक्स कैपिटल अकाउंट 1300। इज दैट फाइन? लिख देंगे दोस्तों बाय जनरल रिजर्व सेकेंड लाइन, because first line should always be reserved for opening balances. I hope you got this. दलाल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अरे राजा, दलाल ने पे किया है। एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू दलाल। अपनी लाइबिलिटी दलाल पे कर रहा है तो अपने को दलाल को पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया 1000 से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तृप्ति यू आर करेक्ट। तृप्ति यू आर करेक्ट। इसका मतलब यह है क्या क्या फर्म शुड पे दलाल? यस इट इज। सिमरन गुड मॉर्निंग। यस अतीत करेक्ट। नेक्स्ट कैपिटल दलाल बैनर्जी मलिक लिख देंगे दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 12000, बैनर्जी 12000 और मलिक 5000। समय को 15th क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, पूछो ना बेटा। ऑल गुड। नेक्स्ट सिमरन ऑल गुड। आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट के असेट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। क्या है, कोई एडजस्टमेंट है क्या? यस 20% से बढ़ा दो, कह रहे हैं 20% से बढ़ा दो तो 25,000 इंटू 20% 5,000। एंट्री क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5000 एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में
लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। चलो नेक्स्ट, फर्नीचर 6,500। 6,500 फर्नीचर। फर्नीचर का क्या करेंगे, 10% से डेप्रिसिएट करना है। तो दोस्तों 6,500 इंटू 10%, 650। 650 से 650 से हम लोग उसको लेस कर देंगे। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू फर्नीचर अकाउंट 6,650 10% है। 650 10%। यस दिया। लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपका डाउट लूंगा। सेकेंड इफेक्ट, रिवैल्यू बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, ओ एम जी। ओ एम जी, ये क्या महापाप हो गया मुझसे, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड बोल दिया मैंने। ये पाप तो गोवा में भी नहीं धुलेगा। इस पाप को धोने के लिए सीधा मालदीव जाना होगा दोस्तों। बहुत बड़े लेवल का पाप हो गया ये पाप तो गोवा के पानी से भी नहीं धुलेगा। क्या हो गया, क्या कह दिया मैंने। फर्नीचर 5850। कैसे कैसे लोग सीए बन जाते हैं। सही बोला यार आदित्य, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है अब। कैसे कैसे लोग सीए बन जा रहे हैं, फिर अकाउंट्स के टीचर भी बन जा रहे हैं यार। दिस इज वेरी बैड। मेरे जुबान से ये निकला तो निकला कैसे, ये मुझसे हुआ तो हुआ कैसे दोस्तों। चलो कोई नहीं, चलते रहता है यार। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती है, ठीक है। वो सब प्रॉब्लम तुम्हारा है। क्या जरूरत थी चैट बॉक्स में प्रतीक्षा लिखने की कि प्रतीक्षा कौन है, तब से वही दिमाग में चल रहा है। सो प्लीज प्लीज डू नॉट यूज एनीवन्स नेम इन द चैट बॉक्स, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स 11,750। क्या करेंगे, इन्वेंट्री का वैल्यू 2,500 से इंक्रीज कर दो। एंट्री इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इन्वेंट्री 2,500 और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा दोस्तों 11,750 प्लस 2,500 14,250। ठीक है, लिख देंगे गाइस। इन्वेंट्री asset side of the balance sheet 14,250। आप किसी के ख्यालों में खोए थे इसलिए निकल गया। यस 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 यस, ऐसा ही हुआ है। अंशु ने कोई डाउट पूछा है क्या? नहीं पूछा है, ठीक है। बता दो सर अंशु, क्या बताओ। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स 5,500। ट्रेड रिसीवेबल्स पे कुछ है क्या भाई? यस, 10% का आरडीडी क्रिएट करना है। कितना हो जाएगा 10%? 550। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दोस्तों 2 आरडीडी 550 और बैलेंस शीट के एसेट साइड में गाइस, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रेड रिसीवेबल 5,500 लेस प्रोविजन 550, आउटर कॉलम 4950। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है, एक कोई भी फिगर लिख दो, बचा हुआ जो है एक बाद में लिखेंगे कैश एट बैंक। ठीक है ना,
तो दोस्तों कैश इन हैंड लिख लेंगे, कैश इन हैंड लिख लेंगे 140 बैलेंस शीट में, और कैश एट बैंक ये फिगर आखिरी में आएगा, ये फिगर हम लोग आखिरी में डालेंगे। ठीक, now entire balance sheet is completed. Now let's see adjustment one by one. The partners have agreed to take Mr. Mistry as a partner with effect from 1st April 2020 on the following terms. Mr. Mistry shall bring 5,000 towards his capital. एंट्री क्या होगी दोस्तों? व्हाट विल बी द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्त्रीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्त्रीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मिस्त्री के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, मिस्त्री के कॉलम में 5,000। ठीक है, नेक्स्ट पहला हो गया। The value of inventory to be increased by 2,500 and furniture should be depreciated by 10%. हो गया। Reserve for doubtful debt should be provided at 10% of the trade receivables. हो गया। The value of land and building should be enhanced by 20%. हो गया। The value of goodwill is to be fixed at 15,000. ठीक है, 15,000 का गुडविल है, गुडविल का अमाउंट फिक्स किया है। लेकर आ रहा है क्या वो? नहीं सर, कैसे पता चला लेके नहीं आ रहा है? अरे भाई दिया हुआ होता, अगर लेके आता तो ऐसा सेंटेंस होता कि ही बॉट 15,000 एज अ गुडविल। ठीक है, या वॉट एवर अमाउंट एज अ गुडविल, लेकिन ऐसा दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे फर्म का गुडविल 15,000 रुपया है। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 15,000। क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो गाइस, सबसे पहले मैजिकल एंट्री हमें पास करनी होगी, लेकिन मैजिकल एंट्री पास करने के लिए मुझे सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियोज निकालने पड़ेंगे ऑफ ऑल दी ओल्ड पार्टनर्स। तो दोस्तों कौन कौन है ओल्ड पार्टनर्स? दलाल, बैनर्जी, मलिक। चेक करो दोस्तों रेशियोज क्या आएंगे, चेक द रेशियोज। ठीक है, दलाल 2/5 ओल्ड रेशियो, नया कितना है? नया है दोस्तों, नया है 5/15। बैनर्जी 2/5, 5/15। मलिक ओल्ड रेशियो 1/5, न्यू 3/15। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों? सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेक। सर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है सर हैज 1 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग, जबकि आपको 9 साल का एक्सचेंज करवाओ। सर नादान है, कुछ भी लिखते जानने तो इग्नोर करो, बच्चे नादान हैं, कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, दलाल, बैनर्जी, मलिक। क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? मलिक कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, केवल दलाल और बैनर्जी सैक्रिफाइस कर रहा है, वो भी इक्वली। ठीक है, तो दोस्तों एंट्री क्या होगी? मंगाएंगे कितना मिस्त्री से? मिस्त्री का रेशियो 2/15, तो 15,000 इंटू 2/15 ये मंगाएंगे उससे 2,000 रुपया मंगाएंगे उससे, और ये 2,000 दलाल और बैनर्जी दोनों आपस में बांट लेंगे आधा आधा। सो गाइस, खुशी ने सही एंट्री दी। मिस्त्री अकाउंट डेबिट 2,000 टू दलाल अकाउंट 1,000 टू बैनर्जी अकाउंट 1,000। ठीक है ना? चलो आ जाओ दोस्तों। तो सबसे पहले टू दलाल मिस्त्री कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में टू दलाल कैपिटल 1,000, टू बैनर्जी कैपिटल 1,000, और सेकेंड इफेक्ट बाय मिस्त्रीज कैपिटल दलाल के कॉलम में 1,000, बैनर्जी के कॉलम में 1,000। आई होप एवरीवन गॉट दिस एडजस्टमेंट। किसी को कोई शक? एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो नेक्स्ट, जनरल रिजर्व टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी कर दिया है हमने। द न्यू पीएसआर विल बी दलाल, बैनर्जी, मलिक, मिस्त्री।
ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए था, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इंक्लूड 1000 ड्यू टू मिस्टर सेन व्हिच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल, नेसेसरी एंट्रीज वर नॉट मेड इन द बुक्स, इसका भी एंट्री हम लोगों ने कर दिया है दोस्तों। यस, एंटायर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट and then the capital accounts of the partners and then the balance sheet. I hope everyone is ready. Ready everyone? Ready क्या? चलो आ जाओ। तो सबसे पहले क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट हो रहा है जरा बताना। क्रेडिट साइड का टोटल 7500, डेबिट साइड में भी लिख दूंगा 7500, 7500 माइनस 550 माइनस 650, द इंटायर प्रॉफिट कम्स टू 6300। ठीक है, सो 6300 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। तो गाइस दलाल 2520, Banerjee 2520 and Malik 1260, टोटल 6300 का प्रॉफिट, टोटल 6300 का प्रॉफिट। ठीक है क्या? नेक्स्ट, नाउ ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लिख देंगे गाइस बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2520, बैनर्जी 2520, मलिक 1260। नाउ क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब तरफ क्रेडिट साइड बढ़ा है। मिस्त्री का टोटल क्रेडिट साइड का 5000, मलिक 5000 प्लस 1300 प्लस 1260 7560, बैनर्जी 12000 प्लस 2600 प्लस 1000 प्लस 2520 18120, एंड देन दलाल 12000 प्लस, अरे 12000 प्लस 2600 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 2520 19120। डेबिट साइड में भी लिख दूंगा गाइस, डेबिट साइड में भी लिख दूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 19120 18120 7560 एंड यहां पर 3000। यही फिगर्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी चले जाएंगे। कैपिटल में लिख देंगे कैपिटल दलाल, बैनर्जी, मलिक, मिस्त्री, आउटर कॉलम 47,800। ना एक ही आइटम बचा है बैलेंस शीट में, वो है बैंक बैलेंस। कितना होगा बैंक बैलेंस? पुराना बैंक बैलेंस है 960 और दोस्तों कैपिटल के 5000 आएंगे 5960, ये रिवाइज बैलेंस हो जाएगा। कैश एट बैंक 5960, 5960। ठीक है, क्लोज करेंगे बैलेंस शीट। 12,850 प्लस 500 प्लस 47,800 61,150। इधर भी 61,150 आ रहा है, क्या चेक करो। 30,000 प्लस 550 प्लस 14,250 प्लस 4950 प्लस 140 प्लस 5960। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है ना? I hope everyone got this. Done?
चलो नेक्स्ट। एनीवन हैविंग एनी डाउट? बैंक का बता दो। क्या बैंक का बता दो? हर बार बैंक का बता दो, बैंक का बता दो, समझ में नहीं आता क्या? एक बार ओपनिंग बैलेंस 960 है और कैपिटल के 5,000 रुपए आए हुए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना तो सिंपल है। हर क्वेश्चन में आखिर में ये कहते हैं बैंक का बता दो। क्या प्रॉब्लम है उसमें? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओपनिंग बैलेंस पहले लाइन में आना चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस आखिरी लाइन में आना चाहिए स्वरूप। बाकी कोई सीक्वेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यस 15th। नाउ चेक करो, दिया आपका डाउट। 35,000 पे 5% का प्रोविजन बनाना है। कितना होगा 35,000 पे 5%? 1750 रुपया। ठीक है, 1750 का प्रोविजन बनाना है जिसमें से 200 का ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा? सिर्फ 1550 का एडिशनल प्रोविजन बनाना होगा। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। और बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा फिर? 35,000 माइनस 1750। आई होप यू गॉट दिस। दिया समझ में आया क्या? चलो समझ में आया दलाल बैनर्जी मलिक का क्वेश्चन सभी को? 16th हो गया, 17th कल करेंगे। एटींथ पर आ जाओ। कम टू 18th, जल्दी आओ दोस्तों। A and B are partners of X and company, sharing profits and losses in the ratio of 3:2 between themselves. On 31st March 2020, the balance sheet of the new firm was as follows: capital AB, trade payables, plant and machinery, furniture, inventory, trade receivable, cash in hand. X agrees to join the business on the following condition: as on 1/4/2020, he will introduce 25,000 as his capital and pay 15,000 to the partners as a premium for goodwill for 1/3 share of profits of the firm. A revaluation of the assets of the firm will be made by reducing the value of plant and machinery to 15,000, inventory by 10%, furniture and fitting by 1,000, and making a provision for bad and doubtful debts at 750 on trade receivables. Prepare profit and loss adjustment account, capital account of the partners, including the incoming partner X, assuming that the relative ratios of the old partners will be in equal proportion after the admission. Very important. क्या क्या बनाना है? पीएल एडजस्टमेंट, मतलब इट इज नथिंग बट रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर एक्स, यानी तीनों का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। assuming that the relative ratios of the old partners will be in equal proportion after admission. So guys, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेशियो क्या होंगे। ठीक है, तो रेशियो कुछ नहीं होंगे दोस्तों, वही रेशियो होगा न्यू पीएसआर का कि पूरा शेयर 1 है, उसमें से 1/3 दिया जा रहा है नए पार्टनर को। अब बचे हुए पार्टनर जो रहेंगे उनका वही पुराना रेशियो रहेगा विच इज 3:2। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रेशियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेशियो मैं बता दूंगा, बाकी आपको ये करके लाना है। ठीक है, सो गाइस ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5, 2/5, और नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करके 1/3 दिया है। तो लेट द टोटल शेयर बी 1, शेयर गिवन टू इनकमिंग पार्टनर 1/3, वो हो जाएगा 2/3, वो हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड रेशियो से और नया पीएसआर आ जाएगा। कैसे होगा? चेक, लेट द टोटल शेयर बी 1, share given to x 1/3,
बचा हुआ शेयर 2/3 और फिर नया रेशियो। ए का कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2/3 इंटू 3/5 एंड 2/3 इंटू 2/5 कितना होगा ये हो जाएगा 6/15, 4/15 और नए पार्टनर को जो दे रहा है 1/3, मतलब क्या हो गया वो? इट विल बी 5/15। इट विल बी 6:4:5। नया रेशियो 6:4:, ना 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 ना, ओ हो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक लाइन आखिरी की फिर से पढ़ाता हूं। Prepare PL adjustment account, capital account of partners including the incoming partner X, assuming that the relative ratios of the old partners will be in equal proportion after admission। हो, मतलब बचा हुआ जो शेयर रहेगा वो दोनों आधा आधा यूज करोगे। सो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, नए पार्टनर एक्स को दे रहे हैं 1/3, पुराने पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। ए और बी का क्या क्या होगा? 2/3 बचा है उसका 1/2 और ये भी 2/3 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2/6, 2/6 और ये भी हो जाएगा 2/6। न्यू पीएसआर विल बी इक्वल, न्यू पीएसआर इक्वल हो जाएगा। खुशी गलत है, 6:4:5 गलत इंटरप्रेट हमने कर लिया था, इक्वल हो जाएगा, बचा हुआ जो शेयर है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो दिस शुड बी द वे ऑफ डूइंग इट, दिस शुड बी द वे ऑफ डूइंग इट। आई होप अभी क्लियर है। ठीक है, अब ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो हमारे पास है, न्यू रेशियो आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5 और 2/5। नया रेशियो क्या है? 1/3 और 1/3। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कितना आ रहा है? यस, व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 4:1, 4:1 आएगा। चेक, ये क्या हो जाएगा? 15, तो ये 9 -5 और ये भी 15, 6 - 5 1/15, 4:1, 4:1। 4:1। ठीक है क्या? बाकी का क्वेश्चन होमवर्क करना है, बाकी का बहुत इजी है, बाकी का बहुत इजी है, होमवर्क कर लेंगे सभी लोग। और कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बचा है, ये कल करेंगे। 18th हो गया, 18th होमवर्क, 19th डन,
ओके 18th 20th and 21st। ठीक है 18th 20th एंड 21 तीनों भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 18 तो हमने कर लिया, 20th भी पढ़ रहा हूं, चेक करते हैं। अल्फा एंड बीटा वेर पार्टनर्स इन अ फर्म, नेमली मेटाकेम शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। कैपिटल अल्फा बीटा, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, टर्म लोन, ट्रेड पेबल्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक। They admit Gamma as a partner from 1st April 2020 on the following terms. He shall have 1/6 share in the future profits. New profit sharing ratio would be 3:2:1. He shall bring 2,50,000 as his capital. Goodwill is valued at rupees 3 lakh. 3 लाख रुपए का गुडविल है, लाया हुआ नहीं है। गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फैक्ट्री बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 20% इजी। इन्वेंट्री इज रीवैल्यूड एट 70,000 इजी। मशीनरी इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20% इजी। ऑफिस फर्नीचर इज टू बी रीवैल्यूड एट 50,000 इजी। ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स 3210 आर बैड एंड 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इजी। पहले बैड डेट्स करेंगे फिर प्रोविजन लगाएंगे। देयर इज नो एक्चुअल लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन। ये एक वर्कमैन कंपनसेशन का फंड बनाया है, लेकिन इसमें कोई भी लायबिलिटी नहीं है, तो ये पूरा की पूरा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक नई चीज है यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। हिडन गुडविल नहीं, स्वरूप कहां से हिडन गुडविल है रे? कुछ भी बोलता क्या रे स्वरूप? कहां से हिडन गुडविल है? ठीक है, एंड गाइस 21st देखेंगे। The following was the balance sheet of Mrs. ABC who were equal partners on 1st Jan 2020. Bills payable, creditors, capital, cash, debtors, stock, furniture, buildings, bills receivable. They agreed to take D into partnership and gave him 1/4 share in the profits on the following terms. D should bring in 6,000 for goodwill and 10,000 as capital. One of the goodwill shall be withdrawn by old partners. Stock and furniture is to be depreciated by 10%. A liability of 1,300 is to be created against bills discounted. The building is to be valued at 40,000. The values of assets and liabilities other than cash are not to be altered. Very important. Last point, क्या बनाने के लिए कह रहा है ये? क्या बनाने के लिए कह रहा है? The value of liabilities and assets other than cash is not to be altered. Memorandum revaluation account. Journal entries भी पूछ रहा है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कह रहा है। तो रिवैल्यूएशन कौन सा बनेगा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। जर्नल एंट्रीज में रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखोगे। ठीक है ना? दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। ना कितने क्वेश्चन हमारे बच जाते हैं? 22 एक बचेगा, 22 और 17 दो क्वेश्चन बचेंगे। कल खत्म करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को दोस्तों, ताकि मंडे से वी कैन स्टार्ट विथ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मंडे से हम लोग रिटायरमेंट शुरू कर देंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है एवरीवन, इज दैट फाइन? लास्ट 2 क्वेश्चंस कल किसी भी हालत में वो 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ताकि वी कैन स्टार्ट विथ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम मंडे। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।